So today what we are going to do is objective questions of inheritance tax. मैं उसके एक दो पहले के चार्जेबल गेन्स वगैरह की भी अगर इसमें कवर हो जाएंगे तो सही है, वरना इसका अलग से will do. What I'm going to do is solve these in my notebook because it is at the end of the day study with us video and I'll keep talking. अगर आप लोग grasp कर पाते हो तो सही है, वरना कुछ कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी मतलब बता दूंगा ऑनलाइन, ठीक है. First, if Libna were to die today on 1st of March 13, not a very healthy start to a sentence, how much of Lulu's net nil rate band will be personal representatives of Libna's estate be able to claim with when calculating the IHT payable on his chargeable estate? Okay. Lulu left the estate valued 2,10,000 for inheritance tax purposes. The estate did not include main residence. Under the terms of her will, Lulu left a specific legacy of 40,000 to her brother, with the other residue of the estate to her husband, Libna. Okay, मतलब 1,70,000 उसने लिबना को ट्रांसफर किया, उसने 40,000 उसके ब्रदर को ट्रांसफर किया. Lulu had made the following lifetime transfers. अच्छा, उसके lifetime में उसने और भी कुछ transfers किए थे. Which were lifetime transfers of 50,000 and potentially exempt transfer 80,000. Both of these transfers after taking the account of the available exemptions. Nil rate band of 2017-18 is 3,25,000. So अगर 3,25,000 था, उसमें से उसने पहले तो अपने ब्रदर को दिया था 40,000 और उसका एक चार्जेबल लाइफ टाइम ये था, वो था 50,000. Let's reduce that and we get 2,15,000. वो अपने मतलब नील रेट बैंड में बच जाता है. Libna has a chargeable estate valued at 9,80,000. His estate includes main residence of 3,40,000 and the outstanding interest mortgage of 1,52,000. Under the terms of his will, Libna has left his entire estate to his son. तो पूरा ही नहीं, इसके ऊपर आरएनआर भी लगेगा, वो अपन बाद में देखते हैं. लगता है इधर तक ही है क्वेश्चन. If Libna were to die today on 1st of March 2013, how much Lulu's nil rate band will be personal representatives of Libna's estate be able to claim when calculating the IST payable on the chargeable estate? So 3,25,000 में से मैंने 50,000 तो माइनस किया जो था हमारा चार्जेबल लाइफ टाइम एसेट, तो मुझे बोला 3,75,000. इसमें से वापस मैंने 40,000 टू ब्रदर भी माइनस किया था. ओके, मेरे को बोला 3,25,000 एक्चुअली. सॉरी, 2,35,000. मैं क्या पढ़ रहा हूँ. 2,35,000 मुझे मिला 1st of March को. अगर वो मरते हैं तो रियल इस्टेट वैल्यू एट 2,10,000. उसने अपने हस्बैंड को किया था ट्रांसफर 1,70,000, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बचता है 40 के ऊपर रेट बैंड यूज होगा. तो एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि डज 13th of February 2010 fall under the 7-year period. Lulu died on 24th of January 2018. 18, so 17, 16, 15, 14, 13 नहीं है, वो नहीं आता मुझे लगता है.
है ना, ये वाला 50,000 भी नहीं आता, तो आंसर शुड बी बी मेरे, सॉरी डी डी मेरे हिसाब से। 2,85,000, ओनली दैट 40,000 टू अंकल शुड बी इन द नील रेड बैग, वो निकल जाएगा। इफ लिब्ना वेयर टू डाई टुडे 1st of March 2023, what is the total amount of residence nil rate band which will be available when calculating the IHT payable on his chargeable estate? The residence nil rate band is only available to descendants. तो 1,75,000 उसके हस्बैंड या बीवी, उसने तो क्लेम नहीं किया था, और इस बंदे ने भी क्लेम नहीं किया था। सो 1,75,000, 1,75,000, क्लेम नहीं किया था मतलब वो मरा ही अभी है, सो उसको दोनों 3,50,000 तक का मिलेगा मेरे हिसाब से। Hmm. But this was a lot of calculation also in this question somehow. Should I just check with the calculation कि अगर 9,80,000 है, 9,80,000 के अंदर 3,40,000 होगा, ठीक है। 3,40,000 माइनस 1,52,000, 1,88,000 प्लस 1,40,000 के अंदर करूंगा मैं 8,28,000। इसके ऊपर मैं निल रेट बैंड चार्ज करूंगा 3,25,000 का, एंड निल रेट बैंड दैट वाज अवेलेबल टू मी, मेरे इसमें के अकॉर्डिंग जो मेरे को आ रहा 3,28,500, वो 2,18,000 मिलता है, और डजंट मेक सेंस। मुझे लगता है 3,50,000 सीधा सीधा आंसर वही होगा। What is the amount of potentially exempt transfers which Libna has made to his son on 22nd of February 2018, the gift of 60,000 shares in Bland Limited after deducting any available exemptions? Potential exempt transfer. लिब्ना के पास पहले, लिब्ना ओन ऑल ऑफ, अच्छा 100% शेयर्स थे उसके पास। उसके पास 1 लाख शेयर्स थे एट 7.1 के पास पहले, उसके पास 7,10,000 थे। आफ्टर मेकिंग द मेड अ गिफ्ट ऑफ, आफ्टर मेकिंग गिफ्ट उसके पास 40,000 थे, मतलब 40% पे ही रहेगा, तो 4.2, तो 1,68,000 मैं माइनस करूंगा। क्या बात है, मेरे को मिलेगा 5 लाख, सॉरी 5,42,000 बराबर है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स, क्योंकि पेट है, ओके, तो मैं -6,000 ही करूंगा, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर में मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ था। 5,36,000 आ रहा है मुझे आंसर, शुड बी बी। तो इतना नाम ऐसा देखना, पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स की, ऐसा लगता है कि मतलब इट इज बिकॉज वी कॉल इट चार्जेबल अमाउंट, या वी कॉल इट ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, समथिंग लाइक दैट। लेट्स चेक लेटर। इफ लेबना were to die today 1st of March 2023, what taper relief percentage reduction would be available when calculating the IHT payable on the potentially exempt transfers which he made to his son on
22nd of February 18, 1st of March 23 से एंड, ये उसका एंड हो गया था, सोचना चालू किया था 2012 में, मतलब 22 में, यहाँ पे 22 स्टार्टेड वेरी स्लो, 22 22 21 20 19 18। अच्छा 18 भी ये क्या है, मार्च है, 18 का मार्च का एंडिंग है, ट्रांसफर किया था हाँ, तो ये आएगा 6 ईयर में, 5 to 6 ईयर्स के बीच में आ रही है, 5 to 6 ईयर्स के बीच में आ रही है, 60%, तो 60% तो है ही है। अभी इसकी डेट क्या थी, लेकिन हमें वो चेक करना है ना, to check his date, to die today, 1st of March 23, and when would IHT be due? मार्च को मरा है, so it would be the end of March, so that would get transferred to the end of September, तो आंसर ए होगा मेरे हिसाब से इस चीज का। What amount of cash gifts made by Libna to his friends during the October 22 is covered by the small gift exemption? ओके देखो, 85 एंड 190 अगर मेड टू द सेम फ्रेंड, तो बंदा इसलिए बेसिकली फ्रॉड कर रहा है। 270 दोनों को मिला के, 85 एंड मतलब 275 जो भी, प्लस 225 एंड 490, तो अभी यहाँ पे what amount of cash gifts made by Libna to his friend in October 2022 is covered by the small gift exemption? सिर्फ यही आएगा मुझे लगता है, 2,25,000, और कुछ नहीं है। So should we check the answer now? 2,10,000, क्वेश्चन नंबर 2,10,000, लिब्ना एंड लुलू, तो बी एंड डी ओ, got two incorrect in a row. That's bad. B, A and C, B, A and C, राइट, ये 3, 3, 4, 5 तो बराबर है। फर्स्ट टू में कुछ मिस्टेक्स हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। लुलूज NRB, तो वो पेट विद इन 7 years ऑफ डेथ, अच्छा वी हैव टू कंसिडर दैट, 80,000 कहीं था ही नहीं। पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर इज बेसिकली, क्वेश्चन क्या था, वो लिब्ना were to die today, 1st of March 2023, how much of Lulu's nil rate band will be personal representatives of Libna's estate be able to claim when calculating the IHT payable chargeable estate? हमारा जो स्टेज 2 है ना, स्टेज 2, उसमें मुझे लगता है दिस थिंग गेट्स कवर्ड, 80,000 वाली, है ना, दिस थिंग गेट्स कवर्ड, ऊपर का 40,000 ऑल्सो गेट्स कवर्ड, तो द आंसर वी कम अप टू इज 2,05,000। देन दे आर राइट, यहाँ पे ये मुझे नहीं आया था। शू रीड अगेन, एक बार फिर से ना क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, या आंसर एक बार नोट पढ़ लेता हूँ। द अनयूज्ड परसेंटेज
of the nil rate band is available to transfer to spouse. The nil rate band was the same amount in the tax year of death of both Lulu and Libna. Therefore, the unused amount is the same as the unused percentage of the current nil rate band. हाँ मतलब कि 3,25,000 ही था, 3,25,000 ही था. इज द सेम थिंग बेसिकली ये बोलना चाहते हैं. सी मैंने यहाँ तक किया था. यहाँ तक मैंने किया था एंड आई गॉट 3,50,000. तो मैंने 3,50,000 मार्क किया था. हाउएवर वैसा नहीं है. सो उन्होंने बोला है डी है. मैंने एक्चुअली 1,88,000 भी लाया था आंसर, लेकिन मेरे को लगा कि वो दैट्स नॉट द राइट आंसर. उसका नाम मैं टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ, मतलब जब हम मॉडगेज मैच करते हैं क्या है. कुछ दिया नहीं है. If Libna were to die today, what is the total amount of residence in the rate band which is available when calculating IHT payable on his chargeable estate? Right. So we never use the residence in the rate band, no? Libna given the value of the net payment to mortgage of the main residence, 1,88,000. बराबर. Oh, हाँ. RNRB is right. RNRB is the lower of the actual RNRB, which is 3,50,000 in this case, and the value of the main residence. तो उस पे उधर हम माइन लेटर अभी 211 करना है अभी. What is the gross chargeable amount for the purpose of calculating any additional tax as a result of Tom's death in respect of Tom's gift of 4,50,000 to a trust on 20th of February 16? The gross chargeable amount in purpose of calculating the additional tax. अच्छा वहां पे आगे जाने के लिए ओके वो स्टार्टिंग होना चाहिए एडिशनल रेट टैक्स का. ठीक है गॉट इट. तो he made a gift of chargeable amount 3,50,000 after available exemptions. Oh, to a trust on 20th of February 16. Tom paid the inheritance tax arising on the gift. This was Tom's only gift. Tom's estate at the date of death included the following. वो सब की जरूरत I don't think so है. Tom paid the inheritance tax arising on the gift. तो Tom ने ही पे किया है. तो हम क्या करेंगे 4,50,000 में से 3,25,000 सबसे पहले माइनस करेंगे. वील गेट 1,25,000. उस 1,25,000 पे नाउ बिकॉज टॉम इज ओनली पेइंग हम चार्ज करेंगे 0.25%. वील गेट 3 लाख सॉरी 31,250. अब मेरे 31,250 आ गया. अभी ये 31,250 विल गेट एडेड विथ 4,50,000 एंड बिकम आर ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट. तो अपना आता है आंसर सी. If Tom had also made cash gifts of 5,500 to his daughter and 400 to his granddaughter on 20th of December 14, what would have been the amount of annual exemption? Wait. RNRB नहीं लिखता ना. Again the what would have been the annual exemption available on the gift to the trust? क्या था मतलब
And the value of earlier present the cash winnings from betting on horse race. गैम्बलिंग तो नहीं आता है इसमें. कैश गैम्बलिंग है क्या? That नहीं नहीं आता. May his main residence valued at 8,75,000. Outstanding repayment on mortgage 5 lakh भाई साहब. तो अलग ही लिखना पड़ेगा. I genuinely don't. मुझे genuinely ये नहीं आता. I'll do one thing. I'll just write like 3,25,000 अपने को पता है ना, तो 3,25,000 प्लस मैं देता हूँ 3,31,000. The gift to the trust on 20th of February 2016. What rate of tax relief is applied to the IST payable on Tom's death, who is liable to pay this additional IST arising on death? Select the appropriate box. When did he die? First May 22. First May 22 को मर गया. Transport 16. So available is 80%. So C and D में ही आंसर है. Executors will pay. So D is the option. ये तो easy था. What is the net value of estates 1, 3 that will be included in Tom's chargeable death estate purposes? So 0 for this guy, 50% of share valued at 1,50,000 in a successful horse race. 1,50,000, 50% share has been valued at 1,50,000 and main residence minus करते हैं, so 3,75,000. Here, the main residence. For how much IST payable on Tom's death estate? Oh, this is the main question. IST payable on Tom's death estate. Hmm. 2 lakh, sorry, 20 lakh, no? 20 lakhs. Pay. Yes, sir. Bye, bye, bye. Okay. Assuming that he may know, ये सभी भी बोला है, he has made any transfers or not. His wife is still alive, बोला, so from that 3,25,000 ही minus करेंगे. RNRB 1,75,000. आएगा आंसर 15 लाख. हाँ 15 लाख. 15 लाख पे 40%. 6 लाख बाय 1 लाख बी द आंसर मेरे हिसाब से. कि मैंने नील रेड बैंड 3,25,000 पूरा माइनस किया है.
इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि इन्होंने ट्रांसफर किया है बंदे ने, ऐसा कुछ भी। मतलब बोला है, लेकिन वो 2016 में वो किया था, एंड नाउ इट इज 23। नहीं, एक्चुअली ही इज यूज्ड। यहाँ पे इन्होंने टैपर रिलीफ का ये क्वेश्चन डाला है ना, वहीं पे पता चल जाता है कि बंदे ने मिलेट बैंड यूज किया तो होगा, और यहाँ पे पूरा ही किया होगा 4,50,000 पे। तो खाली INR भी अवेलेबल है क्या? टू वी गेट एनी आंसर बेसिकली? ये सम, ये जो मैंने अभी किया उससे आंसर तो मिल रहा है, बट वो शायद गलत भी हो सकता है। 7,30,000 पे पहुंच रहा हूँ मैं। 7,30,000 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बिकॉज ही हैज यूज्ड द एंटायर नील रेट बैंड। तो बचता है खाली RNRB, क्योंकि उसने अपने बच्चों पे ट्रांसफर करेगा। सो प्लस ही हैज डाइड आफ्टर आई थिंक 22 रहा कुछ। 17 के बाद मरने पे RNRB मिलता है। सो दिस इज इट। आंसर्स चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। फर्स्ट वन, सी। सी इज द आंसर। सेकंड वाला 100% गलत है, 3,000। उन्होंने सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन अमाउंट ही पूछा था। वो समझ में नहीं आया कि उन्होंने एग्जैक्टली पूछा क्या है। कहाँ गया वो? 33 नहीं, ये हटाना है भाई। इफ Thomas may any cash out of 5,500 to his daughter and 400 to his granddaughter on 20th of December. इतना हो गया। And what would have been annual exemption amount made available on the gift into the trust on 20th of February 2016? तो दिसंबर के टाइम पे, सी 14/15 जो है, 14 December 14 comes in the tax year 14/15, and February 16 comes in the tax year 15/16. तो एनुअल एग्जामेशन अमाउंट का ही 3,000 ही अवेलेबल होगा। आई डेंट गेट कि उन्होंने हमसे पूछा क्या था। यहाँ पे मैंने डी मार्क किया था, यहाँ पे ऑप्शन आई होप बी सी है। शिट, बराबर तो देख रहा हूँ ना। सी कैसे आ गया यार? तब टैपर रिलीफ सही है, लेकिन ये गलत है ट्रस्टीज का। अच्छा मुझे, अच्छा हाँ, उन्होंने ट्रस्ट को ट्रांसफर किया था, तो अगर मैंने ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, सो आफ्टर माय दैट द ट्रस्टीज विल पे। क्योंकि जब किसी पर्सनल को ट्रांसफर किया तो हम एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं। बहुत ही फालतू मिस्टेक थी। ये भी देखते हैं, होपफुली सही आ जाए। गलत है। मैंने एक का आंसर मैंने 0 मार्क किया था, तो कुछ तो गलत है। 1,50,000 बराबर है, 3,75,000 भी बराबर है। कैश विनिंग्स 40%, 40,000। बट बेटिंग का कुछ तो मना किया था ना इन्होंने। मस्ट बी रीजनेबल, नॉट अनएनफोर्सेबल गैम्बलिंग डेट्स। ओ गैम्बलिंग डेट्स। हम गैम्बलिंग डेट्स माइनस नहीं कर सकते, लेकिन गैम्बलिंग का अमाउंट आएगा। हम्म, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ गैम्बलिंग यस, डेट्स ऑफ गैम्बलिंग नो। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा तो ये सब गलतियां नहीं होंगी। हाउ मच IST इज पेएबल ऑन टॉम्स डेथ स्टेट? मैंने इसका सी मार्क किया था, 7,30,000 मुझे याद है। और ये वाला सही आया। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स ये सही आया। ठीक है, पहला वीडियो इतना ही गाइस। बाद में से और MCQ के वीडियोस विल डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।